Hello everyone. Today's topic is tax deducted at source. This topic includes the latest updation up to May 2020 that is made by the finance minister. Before starting this, I want to just tell you basic about the TDS. TDS stands for the tax deduction at source. It means that when an individual or a person making the specified payment which are mentioned under the act to another person, then that person has to deduct TDS when the amount of the payment exceed the threshold limit. जब कभी कोई पेई को पैसा पे करेगा, जो पेयर होगा, पेयर की लायबिलिटी है टीडीएस काटने की, उस रेट पे, उस लिमिट पे जो लिमिट मेंशन करी गई है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में. In this screen you have to see that one is a payer, one is a payee. पेयर को आप बोल सकते हो डिडक्टर, पेई को आप बोल सकते हो डिडक्टी. जब कोई मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है दो पार्टीज के बीच में, तो वन इज अ पेयर, वन इज अ पेई. पेयर इज द पर्सन हु पेज द मनी, पेई इज द पर्सन हु रिसीव द मनी. पेयर मतलब डिडक्टर. डिडक्टर इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस. A person who deduct the TDS is called deductor, and the person whose TDS is deducted will be known as a deductee. Such deducted amount is required to be deposited by the deductor to the government as income tax on behalf of the deductee on monthly basis, and inform the department about all the deductions and deposits of TDS on quarterly basis by mentioning the name and PAN of the deductee, and issue certificate to deductee about the deduction and deposit of TDS so that they can have the evidence of tax paid on their behalf. TDS is claimed by the deductee at the time of payment of his income tax payable by him at the time of filing income tax return. जब भी डिडक्टी अपनी रिटर्न फाइल करेगा वो टीडीएस क्लेम कर लेगा जो डिडक्टर ने डिडक्ट करा था. ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट we may understand that this virtually is called an advance tax, just like एक तरह से एडवांस में ही टैक्स डिडक्टी का जमा हो रहा है, because it is a tool by which the government establish a check over the income to ensure that the avoidance of tax evasion. इस टीडीएस से गवर्नमेंट टैक्स इवेजन को भी एक चेक रखती है कि ज्यादा चोरियां ना हो टैक्स की. इसीलिए गवर्नमेंट पहले ही टैक्स डिडक्ट करा लेती है पेयर से और जमा करवा लेती है अपने पास. एंड ऑल्सो कलेक्ट सम पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स रेवेन्यू ऑन मंथली बेसिस विच हेल्प्स इन, मतलब गवर्नमेंट मशीनरी चलाने में भी बड़ी हेल्प करता है ये टीडीएस. टैक्स इवेजन में भी तो करता ही है, इवेजन को रिड्यूस करने में, इवन दो इट ऑल्सो हेल्प द गवर्नमेंट टू रन प्रॉपरली. गवर्नमेंट को स्मूथ फंक्शनिंग में बहुत हेल्प करता है. And TDS is applicable on every person who is making the payment which are specified under the Income Tax Act 1961, for which detail is given in the while making the payment. Deductor ensure that certain things. देखिए यहाँ इससे आपको पता लग गया कि पेयर की लायबिलिटी है, जो बंदा पे कर रहा है वो टीडीएस काटेगा. देखिए समझिए, recent announcement relating to the various provision of the Income Tax Act 1961 to provide relief during the COVID pandemic 19. The Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman announced relief measures in the provision of the Income Tax Act 1961. These announcements were made during a press release held on 13th May 2020. So far, no legislative amendment have been made in this regard. However, on the basis of a press release dated 13th May 2020 and the announcement made during the said press conference, the list of announcements have been explained in the below para. Relaxation in the rates of TDS. The Finance Minister has announced 25% cut in the rate of TDS and TCS for non-salaried specified payment made to residents. इसका मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने 25% टीडीएस टीसीएस के रेट्स रिड्यूस कर दिए.
फॉर नॉन सैलरीड मतलब सैलरी वालों को कोई बेनिफिट नहीं दिया, नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड पेमेंट जो रेजिडेंट को हो रही है, मतलब नॉन रेजिडेंट को भी नहीं दिया, सैलरीड एम्प्लॉय को भी नहीं दिया। रिवाइज टीडीएस रेट्स एप्लीकेबल होंगे 14 मई 2020 से लेकर 31/3/2021 तक। अनाउंसमेंट वाइड प्रेस रिलीज डेटेड 13 मई 2020। दैट इज फॉर एग्जांपल, जैसे एक सेक्शन है 193 दैट डील्स विद द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, एग्जिस्टिंग रेट उसका 10% है। आफ्टर दिस अनाउंसमेंट द रेट रिड्यूस टू 7.5% and that is applicable from 14th May 2020 to 31st March 2021। मतलब बेसिकली जितने भी रेट्स हैं डीडीएस के, सब रेट को 25% आप कम कर लीजिए। जितने भी रेट हैं, जैसे 5 है, 1 है, 10 है, तो सारे रेट्स आप 25% कम कर लीजिए, बस ओनली इन दैट पीरियड। अगर इस पीरियड में कोई पेमेंट हो रही है तो आपको रेट लेस, मतलब 10% तो 25% माइनस करके 7.5% अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द अनाउंसमेंट रिलेटिंग टू द TDS provisions during the pandemic made by the finance minister। एक बेसिक सी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू कि TDS दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसका एक बेसिक मैकेनिज्म है। सबसे पहले जो इंसान TDS काट रहा है उसके पास TDS का लाइसेंस होना चाहिए। उस लाइसेंस को बोलते हैं हम टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। ये 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करेगा, और ये सब सारे पर्संस को जरूरी है जो पेमेंट कर रहे हैं, जो पेयर है, द पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, और डिडक्टर वही है जो पे कर रहा है। सेकेंड थिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, that is TDS stand for tax deducted at source. As per the provision of Income Tax Act 1961, any company or person making a payment is required to deduct TDS if the payment exceeds certain threshold limit. TDS has to be deducted at the rate prescribed by the tax department. TDS उसी रेट पे काटा जाएगा, the rate that is prescribed by the tax department. डिपॉजिट, फर्स्ट में आपने लाइसेंस लिया, सेकंड में आपने डिडक्ट करा, थर्ड में आपने डिपॉजिट करना है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट जो TDS काटा है। दैट डील्स विद द सेक्शन 200 एंड रूल 30। एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट TDS की रिटर्न फाइल करना जरूरी है आपको, ताकि पता लग जाए कि इतना TDS इतने लोगों का आपकी तरफ से जमा हुआ है। TDS का सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा, जो डिडक्टर है वो डिडक्टी को एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसमें वो बताएगा कि मैंने इस अमाउंट पे इतना इतना TDS इसका जमा करा दिया। जो सर्टिफिकेट्स हैं वो जो दिए जाते हैं दैट इज इन फॉर्म नंबर 16, फॉर्म नंबर 16A। सैलरी के लिए सेक्शन फॉर्म नंबर 16 एप्लीकेबल है एंड अदर देन सैलरी 16A। सैलरी के लिए जो फॉर्म नंबर 16 है दैट इज एनुअली इशू होता है और 16A क्वार्टरली इशू होता है। एनुअली 16 नंबर फॉर्म is 15th June of the financial year immediately following the financial in which the income was paid and deducted। मतलब साल खत्म होगा उसके 15 जून तक आपको इशू करना पड़ेगा डिडक्टर को। And quarterly 16A form is issued within 15 days from the due date of furnishing the statement of TDS। जब statement of TDS furnish करोगे उसकी ड्यू डेट के अगले महीने के 15 दिन, मतलब जैसे 31 तारीख है तो उसके अगले महीने के 15 तारीख तक आपको 16A फॉर्म क्वार्टरली इशू करना पड़ेगा। ये आपको बेसिक मैकेनिज्म पता लग गया कि पहले टैन लो, फिर TDS डिडक्ट करो, फिर डिपॉजिट कराओ बिफोर ड्यू डेट, फिर रिटर्न फाइल करो, एंड आफ्टर दैट you have deductor has to issue a TDS certificate that is in a 16 number form and 16A accordingly। और आपको ये पता लग गया जो ड्यूरिंग पैंडेमिक अनाउंसमेंट हुई है 25% रेट रिड्यूस हो गए हैं सारे के सारे, एंड दैट इज फ्रॉम एप्लीकेबल इन पीरियड बिटवीन 14 मई टू 31st मार्च। ये आपको पता लग गया। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।